Day 3 mean and median. What do we have in mean? Mean is what? Sum of ऑब्जर्वेशन. दिस इज़ फॉर्मूला. कि फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो उन सब का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय x and sum of observation like x1 plus x2 plus x3. सपोज आपके पास xn ऑब्जर्वेशन है और उनको आप n से डिवाइड कर दो. फॉर एग्जाम्पल थ्रोइंग अ डाइस के पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6. दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स. अगर आपको मीन फाइंड करना है, मीन आप एवरेज भी बोलते हो मीन को, अगर आपको मीन फाइंड करना है तो यू विल राइट 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 6 एंड यू विल गेट 21/6, which is 7/2, which is equals to 3.5. This is mean. Also we represent this mean by x is equals to sigma xi upon n, where sigma represents sum. What does it mean? Sum. और इसको हम sigma बोलते हैं. Suppose you have question find mean of first 7 prime numbers. So what are the first 7 prime number? The first prime number is 2, then 3, 5, 7, 11, 13 and then 17. So mean will be sigma xi upon n. इन सब का सम हमें लेना है 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17, and these are 7 numbers. So my sum is 58 divided by 7. The mean will be 82 upon 7. Also you can find in decimals. Next we have find the mean of positive factors of 24. So what are the factors of 24? 1 2 3 and then 6, then 8 12 and 24. So mean we have to find. Make sure the number 1 and the number itself is also considered as the factor of that particular number we are talking about. So my mean is sum of जो भी आपके factors आए हैं upon number of factors, number of all possible factors. So sum of factor is what? 1 + 2 + 3 + 6 + 8 + 12 + 24 divided by, these are 8 factors, so the sum is 60 upon 5. So your mean is 60 upon 8. So mean would be 15/2, which is equals to 7.5. Next question is the mean of 6 observation is 17.5. If 5 of them are 14, 9, 23, 25 and 10, find the 6th observation. We have only one formula and using that formula you will solve every question. So what is the formula we have? That is again sigma xi upon n. हमारी 6 observation है, those will be x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 upon 6. So first 5 1 2 3 4 5 हमें गिवन है एंड हम उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं. ऑल्सो आई हैव गिवन मीन. द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 17.5. सो 17.5 डाल दी हमने वैल्यू एंड x1 to x5 की वैल्यू भी वी हैव. सो व्हाट आर दोज? 14 + 9 + 23 + 25 + 10 + x6. This value we have to find. Just simply solve this, you will get the value of x. So by continuing it we get 17.5 is equals to 81 plus x6 upon 6. This will give you 17.5 into 6 is equals to 81 plus x6. So this is what? 105 is equals to 81 plus x6. The value of 6th observation is 105 minus 81, which is equals to 24. Again a very important question. These are the weight of 8 students of a class. 1 2 3 4 5 6 7 and 8.
तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द मीन वेट. तो मीन वेट विल बी व्हाट? x bar will be equal to sigma xi upon n, meaning by we have to add all these quantities. 48.7, 45.1 plus 50.4 plus 43 plus 51 plus 49.3 upon 8. So this will be mean weight, which comes out 382 upon 8, 47.75 kg. In second part they have asked if the teacher whose weight is 62 kg is also included, that what will be the mean weight. So ये आपके 8 स्टूडेंट्स थे, एक टीचर भी ऐड हो गया, तो 8 स्टूडेंट्स का सम कितना था आपका? 382 आया था वेट का सम, और उसमें एक टीचर ऐड हो गया जिसका वेट आपका 62 kg है. सो नाउ हाउ मेनी पीपल वी हैव? 9. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी चेंज होती है. कीप दिस इन माइंड. अगर आप कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट साथ साथ ही करोगे, सो दैट आपका आंसर वेरी ना करे. सो न्यू मीन आपका क्या आ जाएगा? 382 प्लस 62 which is equals to 444 upon 9, which gives you 148 by 3 kg, which is equals to 49 1 by 3 kg. Next is the mean of 10 numbers is 55. पहली लाइन पढ़ी हमने, इसी को सॉल्व करो पहले. So mean of 10 number means x1 plus x2 up to x10 divided by 10, which is equals to 55. So from here I can get the value of x1 plus x2 up to x10, that is what? 55 into 10. यहाँ से आप क्या कंक्लूड करते हो? यहाँ से हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमारे पास मीन गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ढूंढ सकते हैं. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या हुआ? जैसे अब ये क्वेश्चन है आपका, इसमें हमारे पास 10 नंबर का मीन दिया हुआ था. अब 10 नंबर का आपको सम भी पता है कि उन 10 नंबर्स का जो सम है दैट इज़ 550. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट दे हैव सेड द मीन इफ़ अ नंबर इज़ इंक्लूडेड द मीन बिकम 60. अगर एक नंबर इंक्लूड किया तो ऑलरेडी वी हैड 10 नंबर्स, तो अब हमारे पास नंबर कितने हो गए? पहले x10 तक थे, अब एक और नंबर ऐड हो गया. नाउ आई हैव 11 नंबर एंड द न्यू मीन इज अगेन 60. सो x1 से लेके x11 तक आपका जो सम आया दैट इज 60 इंटू 11. ये आपका सम ऑफ 11 नंबर है, ये सम ऑफ 10 नंबर है. तो अगर मैं x1 से लेके x11 का जो सम आया है उसमें से माइनस कर दूँ x1 से लेके x10 का जो सम है, सी ऑल टर्म्स विल बी कैंसल आउट, विल बी लेफ्ट विद x11 ओनली, जो न्यू एंट्री हुई है. तो यहाँ तक का जो सम आया था दैट वाज 600, और यहाँ तक का जो सम आया था दैट इज़ 550. सो द एडेड ऑब्जर्वेशन इज इट वॉज 60 into 11, which gives us 660. So 660 minus 550, which gives you 110. So this is your added observation which you were supposed to find. See again, हमें गिवन था कि द मीन ऑफ 10 नंबर है दैट इज़ 55. तो 10 नंबर का मीन हमने कैलकुलेट कर लिया, जिससे हमारे पास 10 नंबर का सम आ गया. अगला हमें दिया हुआ था कि एक और नंबर ऐड हो गया. सो नाउ न्यू मीन बिकेम 60. तो एक नंबर ऐड हुआ तो यहाँ पे 11 आएगा. सो x1 से लेके x11 तक का सम 660 आ गया. ये 11 ऑब्जर्वेशन है और ये 10 ऑब्जर्वेशन है. इसमें से आप माइनस करोगे तो एक ऑब्जर्वेशन बचेगी. वो कौन सी ऑब्जर्वेशन बचेगी? जो आपने एक्स्ट्रा ऐड की थी. सो तो हमने वही किया है, 11 ऑब्जर्वेशन में से 10 ऑब्जर्वेशन माइनस कर दी. सो यू गेट x11, 11th टर्म. नेक्स्ट इज द मीन हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट इज दिस. क्या गिवन है? हमें 10 स्टूडेंट्स की मीन हाइट गिवन है, यानी कि मीन गिवन है 10 ऑब्जर्वेशंस का. 2 more, okay, let's do till here first. So mean of 10 observation is given. So क्या गिवन है आपको? मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 151.8 सेंटीमीटर एंड वी डोंट नो दिस सम. तो ये हमें एक्स आई ही रहने देते हैं, या अपॉन 10 कर लो. इधर यू कैन राइट दिस x1 plus x2 up to x10 ऑल्सो अपॉन 10.
सो यहाँ से लेके हमारे पास जो x1 से लेके x10 तक स्टूडेंट हैं, अगर मैं उसके सम की बात करूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके आपका जो सम आएगा वो क्या आएगा, इंटू 10 किया हमने, सो वी गेट 1518। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ एक्स्ट्रा, 2 more students of this and this height added. What is the new mean? Very simple. So let's new mean is also x bar sigma xi. देखो मैं बार बार फॉर्मूला लिख रही हूँ, तो यू ऑल्सो हैव टू राइट दिस फॉर्मूला, अदरवाइज यू कैन लूज मार्क्स। x10 तक ऑलरेडी थे हमारे पास, 2 नए स्टूडेंट आ गए, दैट इज x11 एंड x12. सो नाउ डिनोमिनेटर विल बी डिवाइडेड बाय 12 एंड दिस मीन यू हैव टू फाइंड, so x bar is equals to, till here I have some 1518. So the new added students are of the height 157.6 and 154.4 upon 12. So you get sum as 1830 divided by 12. So you are getting 152.5 centimeter. This is new mean height. This question is very important. The mean marks scored by 40 students was 72.5. सो हमारे पास 40 स्टूडेंट्स का जो मीन है दैट इज़ गिवन 72.5. तो वी डोंट नो x1 ईच क्वांटिटी वी डोंट नो, तो वी नो दैट द सम अपॉन 40 इज़ 72.5. अब आगे क्या बोला है, तो यहाँ से हम फाइंड क्या कर सकते हैं, x1 से लेके x40 तक का सम, वी गेट 72.5 इंटू 40. व्हाट वी हैव गिवन, it was detected that marks of one student copied as 48 instead of 84. यानी कि 84 रिक्वायर्ड था, बट हमने जो लिया है वो 48 ले लिया. अब इसमें करेक्ट मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, करेक्ट मीन का फॉर्मूला होता है आपका जो आपका सम आया है, ये आपका सम कितना आ गया 72.5 इंटू 40, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया. अब इस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में से जो इनकरेक्ट वैल्यू थी उसको माइनस कर दो और जो करेक्ट वैल्यू थी उसको प्लस कर दो. अभी हम करेक्ट सम निकाल रहे हैं, करेक्ट मीन बाद में निकाल लेंगे, पहले करेक्ट सम निकाल लेते हैं. तो करेक्ट सम क्या है हमारा 72.5 इंटू 40 एंड द इनकरेक्ट वैल्यू वॉज 48 एंड करेक्ट वॉज 84. सो करेक्ट सम हमारा कितना आ गया, करेक्ट सम वी गेट 2900 माइनस 48 प्लस 84 इज 2936. कैन यू टेल मी व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नाउ, कितनी ऑब्जर्वेशन का सम आया ये, सी 10 ऑब्जर्वेशन थी, एक गलत थी और एक सही थी, तो ऑब्वियसली उतनी की उतनी ऑब्जर्वेशन रही है हमारे पास, जो रॉन्ग थी उनमें माइनस कर दी, जो करेक्ट थी वो ऐड कर दी, तो ऑब्जर्वेशन स्टिल 10. तो हमें मीन निकालना है, मीन हमारा क्या आएगा, करेक्ट मीन निकालना है. तो करेक्ट मीन आपका आएगा करेक्ट सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. So correct sum 2936 and number of observation is 40. So you get the mean as 73.4. That's all for today. Thank you very much.